Hello, assalamu alaikum to everyone. Once again, welcome on my this YouTube channel. I hope you all are doing great and having amazing and enjoying our life. In today's video lecture, we are going to discuss conjunctions. I hope you all are familiar about conjunction. What is conjunction? Conjunction actually में क्या है? Conjunctions there is लिंग अबाउट या phrases या clauses या sentences. इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बताया? कुछ समझ में आ गया? I hope I will tell in detail. इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कंजंक्शन एक ऐसा चीज है जो सेंटेंस को जोड़ते हैं और phrases को clauses को जोड़ते हैं, जो जोड़ने की काम करते हैं उसको हम कहते हैं कंजंक्शन इंग्लिश में, और उर्दू में बताते हैं तो जोड़ने की काम या जोड़ने वाले चीज को हम कहते हैं कंजंक्शन. In today's video lecture, I will teach you about the conjunctions. Yeah, I will brief here a little bit. Conjunction जो है three types के. There are three types of conjunction. Coordinating conjunctions, correlative conjunctions, subordinating conjunctions. In today's video lecture specifically, I will going to teach you coordinating conjunctions. I will teach you all the three, but I will teach one by one. But in today's video lecture specifically, I will teach you coordinating conjunctions. What is actually coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions, it's join phrases, clauses, independent clauses, words. If we talk about coordinating conjunctions, there are 7 types of coordinating conjunctions: for, nor, or, but, yet, so, and. These 7 types of coordinating conjunctions. Today we are going to deal all of these 7. It's a simple trick. You can grab, you can remember fan boy's name. This is a sample trick. Fan boy's name you can remember, and you can easily recall in your mind coordinating conjunctions. I will teach in today's video lecture coordinating conjunctions. We are not much talking here. If anyone you have new on this YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel and also share my videos amongst your friends. Don't forget to subscribe and share my videos, and also do like and give your opinions in the comment below regarding this video lecture. Okay, now let's go towards our today's lecture. Thank you so much to everyone to giving your love and your support to me on my these YouTube channels. Okay, now let's go towards our today's video lecture. Now let's come on. चलो हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में कंजंक्शन के बारे में. एक्चुअल में कंजंक्शन होते क्या हैं? व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन हम कब यूज़ करते हैं? कंजंक्शन जो है ये एक ब्रिज की काम करते हैं. ब्रिज पता है ना आप लोगों को? एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिज. उसी की तरह सेम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन वर्ड्स. या अगर हम इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन आपको बता दें तो कंजंक्शन इज अबाउट यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. या वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हेल्प करता है. इसको हम कहते हैं, उस तरह की वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शन. इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे वन बाय वन. कंजंक्शंस एक्चुअल में होते हैं 3 टाइप्स: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? नाउ लेट्स वी सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ही पढ़ेंगे. सबसे पहले ये देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 7 तरह की होते हैं. यहाँ पे मैंने दिया है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन भी दिया गया है.
कोरिलेटिव कंजंक्शंस में ये सभी कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखना, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। इसके बाद जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको भी मैंने यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख भी सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक्चुअल में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन टुडेज वीडियो लेक्चर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये एक ऐसी चीज़ है या वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेसेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को। ये 7 टाइप्स हैं, मैंने आपको पहले बताया। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इन 7 टाइप्स को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में इन 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको। चलो देखते हैं वो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं हम और सेंटेंस में इसको किस तरह यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स वी सी थ्रू एन एग्जांपल्स ऑल ऑफ दीज 7 कोऑर्डिनेटिंग। नाउ लेट्स वी सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ द 7 टाइप्स। फॉर, एंड, नॉर, बट, or yet. So these are the 7 types of coordinating conjunction. ये 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का एक सैम्पल तरीका है, एक ट्रिक है, उसको हम कहते हैं फैन बॉयज़। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ के नाम पे आप याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग। नाउ लेट्स गेट टू ईच यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हर एक यूज जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको हम 1 by 1 देखेंगे और 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ज्वाइन वर्ड्स, ज्वाइन फ्रेसेस, ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लासेस, इन तीनों को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को और फ्रेसेस को और इंडिपेंडेंट क्लासेस को, इनको हम आपको बताएंगे और समझाएंगे थ्रू एन एग्जाम्पल के थ्रू। हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन जो है ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, इसको हम देखते हैं। We use coordinating conjunction to join nouns, verbs, adverbs and adjective। इन सभी चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं coordinating conjunctions। एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाएंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाएंगे। जैसे कि अली एट पिज़्ज़ा एंड चिप्स। अली ने क्या खाया? पिज़्ज़ा और चिप्स। यहाँ पे हमने कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया? एंड को यूज़ किया। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, पिज़्ज़ा और चिप्स ये दोनों क्या है? नाउन है। ये 2 नाउन्स को जोड़ रहे हैं। इसमें कंजंक्शंस किस चीज़ की काम कर रहे हैं? 2 नाउन्स को जोड़ने की काम कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। इसी की तरह हम और एग्जांपल्स देखेंगे। जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, शी sang एंड danced in the pouring rain। यहाँ पे देख लेना सेंटेंस में कंजंक्शन किस 2 चीज़ों को जोड़ने की काम कर रहे हैं। यहाँ पे sang एंड डांस को, यहाँ पे sang एंड डांस ये दोनों क्या है? वर्ब है। इसमें इस सेंटेंस में कंजंक्शन 2 वर्ब्स को जोड़ने में मदद कर रहे हैं, 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। और नेक्स्ट सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस है, शी इज रिकवरिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट स्लोली बट श्योरली। यहाँ पे जो है स्लोली एंड श्योरली ये दोनों क्या है? ये दोनों है एडवर्ब्स। इसमें याद रखना हमने कंजंक्शन यूज़ किया है बट। ये कंजंक्शंस इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? 2 एडवर्ब्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको याद रखना। स्लोली एंड श्योर पे एडवर्ब जो यूज़ हुए हैं, स्लोली श्योरली, ये दोनों एडवर्ब से 2 एडवर्ब को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कंजंक्शन बट। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लेना, द बिल्डिंग वाज ओल्ड येट ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया है? यहाँ पे येट हमने यूज़ किया है। ओल्ड और ब्यूटीफुल क्या है? यहाँ पे यह चीज़ याद रखना। ओल्ड एंड ब्यूटीफुल ये दोनों एडजेक्टिव है। यहाँ पे कंजंक्शंस 2 एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहे हैं, यह चीज़ याद रखना। मैंने आपको इससे पहले 2 वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करते हैं और इससे पहले सेंटेंस में हमने आप बताया एडवर्ब्स को ज्वाइन करते हैं किस तरह, वो सभी बताया। ये ओल्ड एंड ब्यूटीफुल 2 एडजेक्टिव है, ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं।
इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको थोड़ा देखना। It's important note that if we have more than two things, then we have to place a comma between each thing in the list. अगर एक सेंटेंस में दो से ज़्यादा अगर चीज़ें हैं या दो से ज़्यादा नॉन्स हैं, उस टाइम हमें हर एक के बाद कॉमा यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, इस सेंटेंस के थ्रू आपको समझाएंगे। I bought apples, bananas, oranges and grapes. मैंने क्या ख़रीद लाया? एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। इन सभी के बाद मैंने क्या दिया है? कॉमा दिया हर एक के बाद। एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। यह चीज़ याद रखना, जब सेंटेंस में दो से ज़्यादा नाउन्स की जब सेंटेंस में दो से ज़्यादा चीज़ें या दो से ज़्यादा नाउन्स की जब इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम ये चीज़ याद रखना, हर एक के बाद कॉमा देना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं? 4 नाउन्स हमने यूज़ किया है। इसकी वजह से हमने हर एक के बाद कॉमा दिया है। इस पॉइंट्स को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स लुक एट हाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे ज्वाइन करते हैं फ्रेसेस को, हम इसको देखेंगे। सो फ्रेसेस क्या होते हैं, सबसे पहले उसको देखेंगे। सो फ्रेस आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ अ क्लॉजेस। ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं फ्रेसेस जो बनाते हैं क्लॉजेस। एक एग्जांपल देते हैं आपको, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। Here one thing is important. When joining phrases we don't need to put a comma before the conjunctions. इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया? इसका मतलब यही है, जब हम फ्रेसेस को ज्वाइन करते हैं उस टाइम कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फ्रेसेस को ज्वाइन करते हैं कंजंक्शंस के थ्रू, उस टाइम कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह चीज़ याद रखना, जब फ्रेसेस ज्वाइन हो रहे हैं, इसको याद रखना, माइंड में रखना, ये नोट करके रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो हम देखते हैं इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किस तरह ज्वाइन करते हैं कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में देखेंगे। Lastly, let's look at how coordinating conjunction join independent clauses. चलो हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कैसे ज्वाइन करते हैं कंजंक्शंस, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, हम इसको देखते हैं। So, an independent clause is a sentence that makes sense on its own. It contains a subject and a verb. Therefore, if we are joining to independent clauses, we can use a conjunction. इसका मतलब यही है, इसमें ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का एक अपना सेंस होते हैं, एक अपना फुल मीनिंग होते हैं, एक अपना पूरा मतलब होते हैं लोग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का, और इसको जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। लेकिन इसमें यह चीज़ याद रखना, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते समय जब हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस, उससे पहले हमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट कि रिमेंबर वी ऑलवेज नीड टू यूज़ अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शंस व्हेन जॉइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं उस टाइम हमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं कंजंक्शन से पहले, यह चीज़ याद रखना। ये रहा हमारा एग्जाम्पल्स, जैसे कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, बट आई डोंट प्लेइंग लाइक टेनिस। लेकिन टेनिस मुझे पसंद नहीं। इसमें देखना, हमें कंजंक्शन से पहले मैंने कॉमा यूज़ किया है, यह चीज़ याद रखना। जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हम ज्वाइन करते हैं, कंजंक्शन यूज़ करने से पहले हमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, शी डिडंट बिलीव मी नॉर डिड माई स्टूडेंट व्हेन आई टोल्ड देम। इसमें यह चीज़ याद रखना, हर वक्त कंजंक्शंस से पहले हमने कॉमा यूज़ किया है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, या जोड़ते समय कॉमा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, यह चीज़ याद रखना। थर्ड जो सेंटेंस है, जो थर्ड एग्जांपल है, दे स्टाइड एट द पार्टी सो दे कुड मीट हर। यहाँ पे यह चीज़ नोट करना, यहाँ पे एट द है, यहाँ पे एट आया या इस पर द नहीं आ गया ना, यहाँ पे एट द है, यह चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको देख लेना। यहाँ पे भी देख लेना, हमने
कंजंक्शंस को यूज़ करने से पहले कॉमा यूज़ किया है, यह चीज़ याद रखना। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हम जोड़ते हैं उस समय कंजंक्शन को यूज़ करने से पहले हमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल है। आई होप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कंजंक्शंस थोड़ा समझ में आ जाए। मैंने पूरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो 7 टाइप्स हैं उनको सेंटेंस में यूज़ किया है, अच्छी तरह देखना। यहाँ पे मैंने कुछ और सेंटेंस दिया है एग्जांपल, जैसे कि फॉर, दिस इज़ द कंजंक्शंस। फॉर अलोंग टू सी हर फेस, मे बी शी इज़ सिंगिंग और शूटिंग, जावेद लिव्स इन दिल्ली और चंडीगढ़, they played well so they celebrated। इन सेंटेंस को बार ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसमें यूज़ किया है कंजंक्शन। इसको देख लेना आप लोग अच्छी तरह। मैंने पूरे 7 टाइप्स जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको पूरा सेंटेंस में यूज़ किया है, बताया है आपको। आप वीडियो को ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।